Hello students, in this video we are going to discuss about the factors affecting the magnitude of crystal field splitting. We have studied in detail about the crystal field splitting theory, and in that theory we have discussed that there takes place the splitting of 5 degenerate d orbitals into 2 sets when the metal atom or ion is surrounded by the ligands. And the energy gap between the 2 sets of d orbitals after they are split, that energy gap is called crystal field splitting energy. And in this topic we are going to discuss about various factors which affect that crystal field splitting energy, which affect the magnitude of that energy, which decide the gap between the 2 sets of d orbitals after they are split. So first factor which determine the magnitude of that gap, which determine the magnitude of crystal field splitting energy, is nature of ligand. In crystal field splitting theory we talk about the 2 types of ligands. Ligands जो हैं हमारे पास 2 तरह के होते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी में. वन आर वीक फील्ड ligands and one are strong field ligands. तो अगर हम बात करें स्प्लिटिंग की, स्प्लिटिंग ज़्यादा होएगी कम होएगी, इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लाइगेंड. द वीक फील्ड लाइगेंड्स आर दोज लाइगेंड्स विच प्रोड्यूस लेस स्प्लिटिंग, लेस एनर्जी गैप, एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स आर दोज विच प्रोड्यूस लार्ज एनर्जी गैप between the 2 sets of d orbitals. So it is very simple criteria that weak field ligands delta naught या delta value is less, strong field ligands delta value is large. Now how to decide the ligand to be weak field ligand or strong field ligand? We have a series, we have an arrangement in which different ligands are arranged in increasing order of their ligand field strength, and that series is called spectrochemical series. What is that spectrochemical series? It is an arrangement of different ligands in increasing order of their ligand field strengths. तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ड्रॉ कर रखी है सारी की सारी. यहाँ से हम शुरू करते हैं आयोडाइड आयन से. आई नेगेटिव का सबसे वीक फील्ड स्ट्रेंथ है. दिस इज द वीकेस्ट लाइगेंड, वीकेस्ट फील्ड लाइगेंड. एंड इफ वी गो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ दिस सीरीज वी एनकाउंटर कार्बोनिल लाइगेंड इन द एंड. सो कार्बोनिल लाइगेंड इज स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लाइगेंड. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट the field strength of ligands goes on increasing crystal field strength. So इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम किन्हीं 2 ligands को उठा के कंपेयर कर सकते हैं, उनके ligand field को कंपेयर कर सकते हैं. जैसे मान लो Cl negative and OH negative. Cl negative is comparatively a weak field ligand and OH negative will be comparatively or relatively strong field ligand. But OH negative will be a weak field ligand in comparison to ammonia ligand. Ammonia ligand will be a weak field ligand in comparison to dipyridyl or Cn negative, that is cyanide or carbonyl. So कंपेयर करने के लिए हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना रखी है. अगर हम बात करें कि ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस बेसिस पे बनाई गई है, तो हमारे पास 3-4 पॉइंट्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि जो लाइगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होएगा या वीक फील्ड लाइगेंड होएगा. जैसे अगर हम बात करें कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स यूजुअली कौन से होते हैं. स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? तो फर्स्ट हम कह सकते हैं कि स्मॉल लाइगेंड्स जो यूजुअली मोनोएटॉमिक होते हैं, अगर हम उनकी बात करें, स्मॉल लाइगेंड्स, स्मॉल साइज लाइगेंड्स, दे आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हैलोजन लाइगेंड्स की, तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो जा रहा है वैसे वैसे लाइगेंड जो है वो वीक फील्ड लाइगेंड. एफ नेगेटिव फ्लोराइड लाइगेंड इट इज, या फ्लोरिडो
इसका नेम फ्लोरिडो होगा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव. फील्ड स्ट्रेंथ गोज ऑन इंक्रीजिंग एज द साइज ऑफ लाइगेंड इज इंक्रीजिंग. इसके बाद हम बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स कौन से होते हैं. स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स वो होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन पेयर की पोलराइजेशन ईजिली हो सकती है. ईजिली पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब जिनका इलेक्ट्रॉन पेयर न्यूक्लियस ने टाइटली होल्ड नहीं किया हुआ वो, या हम कह सकते हैं कि जिसका इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर इज मोर एक्सपोज्ड टू द स्पेस, जो एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी जिसमें ज़्यादा होगी, वॉल्यूम कम होएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर की डेंसिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो इजीली पोलराइजेबल होएगा. जैसे अगर इसमें हम बात कर सकते हैं कार्बन डोनर्स. कार्बन डोनर्स आर मोर strong field ligands as compared to nitrogen donors, which are comparatively stronger field ligands, oxygen donors, which are comparatively stronger field ligands for stronger field ligands than halide ions. So ये easily polarizable electron pair के basis पे हम बात करते हैं. What is the meaning of polarization of electron pair? Because metal will be having some positive charge, and that positive charge will attract the electron pair of ligand, and that attraction will cause the distortion in the shape of electron density. That is called polarization of electron pair. अपने तरफ कर लेना. Usually electron density is revolving in a spherical shape. Usually भी कहते हैं कि जो हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, वो सफिरिकल होता है शेप में. लेकिन जब वो किसी पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप में खराबी आएगी, डिस्टॉर्शन आएगी, एंड दैट डिस्टॉर्शन इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. और इससे जो नेक्स्ट क्राइटेरिया, नेक्स्ट पॉइंट है जिसके बेसिस के ऊपर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, वो है हमारे पास कि जिन लाइगेंड्स में एटम्स के बीच मल्टीपल बॉन्डिंग हो, दे आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स. जैसे फॉर एग्जांपल Cn नेगेटिव, CO कार्बोनिल, ये जो है हमारे पास, these ligands are called pi acid ligands. इनमें मल्टीपल बॉन्डिंग होगी. जैसे Cn की अगर आप बात करो, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में देर इज अ ट्रिपल बॉन्ड, देर आर 3 बॉन्ड्स, 1 इज सिग्मा, 2 आर पाई. तो मल्टीपल बॉन्डिंग अगर एटम्स के बीच में होगी, लाइगेंड में एटम्स के इन बिटवीन, इफ देयर इज मल्टीपल बॉन्डिंग देन दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड. इसका रीज़न क्या होता है? ये मेटल के साथ बॉन्डिंग बहुत टाइट करते हैं. इसका रीज़न क्या होता है कि पहले तो ये मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, फिर इनमें क्या होता है, इन लाइगेंड्स में देर आर एम्प्टी ऑर्बिटल्स. तो फिर मेटल अपनी जो फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन्स वापस इनको डोनेट करती है. दैट इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग. तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है. पहले इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को दिया, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड, देन इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स है और मेटल के पास फिल्ड ऑर्बिटल्स है. मेटल डोनेट्स बैक एन इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज पाई बॉन्डिंग. तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया बिटवीन मेटल एंड दीज लाइगेंड्स. सो सच टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग लीड्स टू द मोर एनर्जी गैप बिटवीन द स्प्लिट डी ऑर्बिटल्स. तो ये पाई एसिड लाइगेंड्स हैं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स होते हैं. सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स which help decide that the ligand would be a strong field ligand or it will be a weak field ligand. तो अब हमने सारा डिटेल में डिस्कस कर लिया नेचर ऑफ लाइगेंड. 2 तरह के, वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड. वीक फील्ड लाइगेंड जो है वो कम स्प्लिटिंग कॉज करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड जो है वो ज़्यादा स्प्लिटिंग कॉज करते हैं. देन नेक्स्ट सेकेंड फैक्टर is oxidation state of metal.
सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, सिंपल सा क्राइटेरिया है हमारे पास। मोर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल implies मोर डेल्टा वैल्यू, गैप उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा बिकॉज दैट मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब पॉजिटिव चार्ज मेटल के ऊपर अगर ज़्यादा होएगा तो वो लाइगेंड्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगी, तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगी तो बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होएगी, बॉन्डिंग स्ट्रांग होएगी तो डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होएगी, स्प्लिटिंग ज़्यादा होएगी, लाइगेंड्स का इफेक्ट ज़्यादा होएगा बिकॉज मेटल ने लाइगेंड्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया अपने तरफ। तो इसकी हम एक एग्जाम्पल कर सकते हैं। वी हैव टू कंपाउंड्स, कोबाल्ट का कंपाउंड है, वी हैव टू कंपाउंड्स ऑफ कोबाल्ट। इसमें जो कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और इसमें है +4। ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है, दिस इज द स्क्वायर ब्रैकेट। फॉर दिस कंपाउंड डेल्टा नॉट वैल्यू इज व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, it is 13,100 centimeter inverse energy gap, and for this compound delta naught value is 20,300 centimeter inverse. Now you can well see there is a huge difference between the delta naught values. So delta naught value also depends upon the positive oxidation state. More positive oxidation state, more delta naught value या delta value. Then third factor is type of d orbitals of the metal. मेटल कौन सी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, या मेटल कौन से पीरियड को बिलोंग करती है, उसमें डी ऑर्बिटल्स कौन से हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमें पता है डिफरेंट तरह के डी ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट शेल्स, 3D, 4D एंड 5D। ये ट्रांजिशन मेटल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल्स में डिफरेंट तरह के डी ऑर्बिटल्स होंगे बिलोंगिंग टू डिफरेंट शेल्स। किसी में 3D होएगा, किसी में 4D होएगा, किसी में 5D होएगा। जैसे जैसे शेल नंबर इंक्रीज कर रहा है, जैसे अगर हम 5D की बात करें, 5D का साइज 4D से ज़्यादा, 4D का साइज 3D से ज़्यादा, एंड मोर इज द साइज ऑफ डी ऑर्बिटल, मोर इज द साइज ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ईजिली दे आर असेसिबल टू द लाइगेंड। डी ऑर्बिटल्स जितने बड़े होंगे लाइगेंड्स को वो उतनी ही ईजिली असेसिबल होंगे। मीन्स टू से लाइगेंड्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स उतनी जल्दी उन डी ऑर्बिटल्स में अकोमोडेट करवा सकेंगे, डोनेट कर सकेंगे। सो और जितनी जल्दी लाइगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उतनी जल्दी बॉन्ड बनेगा, अच्छा बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, उतना ही डेल्टा की जो वैल्यू है, गैप है, वो ज़्यादा होगा। So more is the size of d orbitals, easily they are accessible to the coming ligands. More easily and more strongly the bond between metal and ligand will be formed and more will be the delta value. So 5D के केस में delta value ज़्यादा होगा as compared to 4D, which will be more than as compared to 3D orbitals. For example, we have a compound of cobalt, hexamine complex of cobalt with +3 oxidation state, and another compound is of rhodium. It is very same, hexamine complex of rhodium. Rhodium lies below cobalt in the periodic table. Cobalt, rhodium, iridium. So these three elements belong to same family. In this case, the d orbitals are 3D. And in this case the d orbitals are 4D, and if we see their delta naught values, here delta naught is 23,000 centimeter inverse, and in this case delta naught value is 34,000 centimeter inverse. Now you can compare the values. Here delta naught value is much more than delta naught value for this complex because of difference in d orbitals. Here 3D orbitals are involved and here 4D orbitals are involved. And the last factor which decides the magnitude of splitting is the
number of ligands, or we can say geometry of complex. बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है इसमें भी. मोर नंबर ऑफ ligands implies more delta value, बिकॉज लाइगेंड ही आके स्प्लिटिंग करता है, तो जितने ज़्यादा लाइगेंड्स आएंगे उतनी ज़्यादा रिपल्शंस होंगी बिटवीन लाइगेंड ऑर्बिटल्स एंड मेटल ऑर्बिटल्स, और फिर उतनी ही ज़्यादा गैप होएगा, उतनी ही ज़्यादा डेल्टा वैल्यू. ये एक सिंपल सा क्राइटेरिया है. और इसके बाद अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करेगा. जैसे एक है हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, एक है ऑक्टाहेड्रल. तो इसमें पहला क्राइटेरिया तो ये भी लग सकता है कि टेट्राहेड्रल में 4 लाइगेंड्स हैं और ऑक्टाहेड्रल में 6 लाइगेंड्स हैं. तो डेफिनेटली 6 ligands will produce more splitting as compared to 4 ligands. तो splitting in case of octahedral will be more as compared to in tetrahedral. Means to say delta naught is always more than delta t. And it has been found, एक general सा formula हमारे पास है that delta t is almost half of delta naught. ये relationship है हमारे पास. Delta t is equal to 4/9 of delta naught, almost half. And if we compare tetrahedral and square planar, because इन दोनों में क्या है, number of ligands is same. टेट्राहेड्रल में भी 4 ligands आते हैं, स्क्वायर प्लेनर में भी 4 ligands मेटल को अप्रोच करते हैं. तो अभी एक्सप्लेनेशन क्या देंगे कि टेट्राहेड्रल में जब लाइगेंड्स जो हैं अप्रोच करते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है मेटल के अराउंड, लाइगेंड्स आर नॉट डायरेक्टली पॉइंटिंग टुवर्ड्स d orbitals of metal. जो लाइगेंड्स हैं वो डायरेक्टली मेटल के ऑर्बिटल्स की तरफ नहीं जाते. मतलब जो लाइगेंड्स का अटैक होता है वो किसी भी डी ऑर्बिटल के ऊपर डायरेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट पॉइंट नहीं करते उनकी तरफ. लेकिन स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, लाइगेंड्स डायरेक्टली पॉइंट टुवर्ड्स डी ऑर्बिटल्स. तो फिर इट इज क्वाइट क्लियर दैट रिपल्शंस इन दिस केस विल बी मोर. स्क्वायर प्लेनर जब ज्योमेट्री होगी लाइगेंड्स की, तो लाइगेंड ऑर्बिटल्स एंड मेटल ऑर्बिटल्स या लाइगेंड इलेक्ट्रॉन्स एंड मेटल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शंस हैं वो ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ लाइगेंड्स अराउंड मेटल. सो इट इज क्वाइट क्लियर दैट डेल्टा स्क्वायर प्लेनर विल बी मोर देन डेल्टा टी. ये ज़्यादा ही होएगा. रीज़न क्या है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया. सो दीज आर फ्यू फैक्टर्स विच डिटर्मिन द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड splitting energy, that is energy gap between two sets of d orbitals after they are split up.